Tolerance basic terminology. This figure shows a system of two parts with tolerance dimension. So the two parts are an example of ASME Y14.5M-1994 or we will discuss some important terms. First one is the dimension. Dimension is defined as a geometrical characteristic such as diameter, length, angle, or a center distance. Size. Size is a designation of a magnitude. So when a value is assigned to a dimension, it is referred to as the size of that dimension. Nominal size. It is a size number that is used to identify the physical size of part in general terms. So the slot in figure 1 has a nominal size of 1 by 2 inches. Basic size. Basic size is the exact size from which the limits are figured considering the allowance and tolerance. So it is the ideal dimension which is desired if it were possible to machine without tolerance. So an example would be the nominal size of 1 by 2 inches written as 0.500 inches when applied to mating parts as shown over here. तो ये मेरे पास 8 फिगर है, तो यहाँ पे जो मेरी एक स्लॉट है, यहाँ इसकी जो डिमेंशन है वो जो हमें चाहिए नॉमिनल साइज की, और वो है 0.500. Actual size. The measured size of a finished part after machining as shown in figure 1 is the actual size of 0.501. तो हमारी रिक्वायर्ड डिमेंशन जो थी वो 0.500 थी, लेकिन जब हमने इसको मैन्युफैक्चर किया मशीनिंग के बाद इसकी जो एक्चुअल डिमेंशन है वो 0.501 है. इसको हम एक्चुअल डिमेंशन का नाम देंगे. लिमिट्स. Limit is defined as the maximum and minimum sizes shown by the tolerance dimension. So the slot in figure 1 has the limit of 0.502 and 0.498 and the mating part has the limit of 0.495 and 0.497. तो ये मेरे पास जो है एक स्लॉट है जिसकी अपर लिमिट LMC और लोअर लिमिट MMC जो है यहाँ पे दी गई है, और ये मेरे पास जो मेटिंग पार्ट्स है जिसको इसके अंदर ज्वाइन होना है उसकी अपर एंड लोअर लिमिट दी गई है, लेकिन इस स्लॉट की जो एक्चुअल डिमेंशन है वो 0.501 है. चूंकि ये इस लिमिट के अंदर है तो ये एक्सेप्टेबल पार्ट होगा. सो द लार्जर वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज द अपर लिमिट एंड द स्मॉलर वैल्यू इज नोन एज द लोअर लिमिट. टॉलरेंस. टॉलरेंस जो है बेसिकली आपके पास क्या है, टोटल अवेलेबल वेरिएंस है आपकी डिमेंशन में और द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट्स, जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में दिखाया जा रहा है. So the tolerance of the slot in figure 1 is 0.004. कैसे आएगी ये, आप 0.502 को माइनस करेंगे 0.498 से, तो जो मेरे पास स्लॉट की टॉलरेंस है वो 0.004 है. सिमिलरली मेटिंग पार्ट की मेरे पास टॉलरेंस 0.002 होगी. यहाँ पे मेरे पास एक होल एंड शाफ्ट का सिस्टम दिखाया गया, यहाँ पे ये मेरे पास इसकी अपर लिमिट है और ये मेरे पास इसकी लोअर लिमिट है. तो टॉलरेंस क्या है, ये जो आपको यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, और यहाँ पे शाफ्ट की टॉलरेंस कैसे आएगी, इसकी सिमिलरली लोअर और अपर लिमिट में से आपके पास इसकी टॉलरेंस आ जाएगी. और जो आपका गैप है बिटवीन द होल एंड शाफ्ट, इसको हम अलोन्स कहते हैं. वी विल कवर अबाउट लोन्स इन अ मिनट. लीस्ट मटेरियल कंडीशन और आल्सो नोन एज LMC is the condition of a part when it contain the least amount of material possible. जब आपका material least amount of material possible उसने contain करना हो तो उसको हम LMC कहते हैं. So LMC of the external feature is the lower limit. तो इस सूरत में ये जो external feature है ये आपके पास एक cylindrical shaft है, तो LMC of an external feature is the lower limit और similarly the LMC of an internal feature is the upper limit. तो यहाँ पे जो इसका इंटरनल हो रहा है ये मेरे पास LMC है, means smallest diameter, so the least material. और जब आप
इसका आउटर डाया की बात करते हैं तो इट मीन कि इसके पास ज़्यादा मटेरियल अभी इसके ऊपर है, इसका वेट ज़्यादा हो रहा है ना, लार्जर डाया का स्मॉलर डाया का वेट कम हो रहा है। तो लार्जर डाया है तो इट मीन जो एमएमसी पे है मोस्ट मटेरियल, ज़्यादा मटेरियल उसने गेन किया हुआ है। और एलएमसी की बात करें तो लीस्ट मटेरियल। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम मटेरियल कंडीशन फॉर द शाफ्ट। MMC. MMC is the condition of part when it contain the greatest amount of material. बिल्कुल उसी के रिवर्स LMC में आपके पास least material है और MMC के अंदर maximum material की amount है. So MMC of an external feature such as shaft is the upper limit and MMC of an internal feature such as hole is the lower limit. तो यहाँ पे अब जो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसके अंदर एक होल है, तो यहाँ पे जो मेरा इंटरनल डाया है ये मेरा एमएमसी पे है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल फेस है ना, तो यहाँ पे मोस्ट मटेरियल लेना, ज़्यादा मटेरियल बाकी कम रिमूव है। जब इसको मैं एलएमसी पे बनाऊंगा तो मैं ज़्यादा मटेरियल रिमूवर, आप इसको इस सेंस में ले लें कि वेट जो है स्मॉलर डाया का ज़्यादा हो रहा है या लार्जर डाया का। डेफिनेटली आपका लार्जर डाया का वेट स्मॉल होगा और स्मॉलर डाया का वेट ज़्यादा होगा। स्मॉलर डाया का मतलब कि अभी ज़्यादा मटेरियल आपका इस ब्लॉक में है और लार्जर डाया का मतलब है कि आपने ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम मटेरियल कंडीशन है फॉर होल। तो ये इंटरनल फीचर के लिए है और ये मेरे पास एक्सटर्नल फीचर के लिए थी। Allowance. Allowance is the minimum clearance or the maximum interference between the part or the tightest fit between the two meeting parts. So according to figure 1, the allowance is 0.001. So meaning that the tightest fit occurs when the slot is machined to its smallest allowable size, that is 0.498, and the mating part is machined is the largest allowable size of 0.497. अगर हमारा ये लार्जेस्ट इसका मेटिंग पार्ट बन जाए 0.497 पे और जो मेरी ये स्लोट है ये बन जाए लोअर्स्ट लिमिट में, दैट इज 0.498, तो जो मेरे पास अलाउंस है वो 0.01 की है। तो बहुत टाइट फिट जो है वो अटर होगा। फिट्स क्या होते हैं इसको हम इसी लेक्चर 7-2 के अंदर कवर करेंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन द 0.498 एंड 0.497 और 0.001 इज द अलाउंस। तो 0.001 जो है वो बेसिकली आपके पास अलाउंस है जो कि मिनिमम अलाउंस की वैल्यू है। मैक्सिमम कैसे आएगी, वो आप इस एलएमसी में से इस एलएमसी को माइनस करेंगे तो आपके पास ये मैक्सिमम आ जाएगी। इसकी आप एवरेज लेंगे तो ये आपके पास मतलब इन दोनों मैक्सिमम और मिनिमम जो आपके पास अलाउंस है इसकी आप एवरेज लेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। मटेरियल कंडीशन सिंबल्स. So the two symbols are used for material condition as shown in the figure M and L. So M material condition mean MMC symbol, मतलब MMC सिंबल जो है उसके लिए आप M यूज करेंगे एंड द लीस्ट मटेरियल कंडीशन LMC के लिए हम L का कंडीशन जो है L सिंबल यूज करेंगे. So LMC is the opposite of MMC. It refers to a shaft that is at its smallest or a hole that is at its largest. So another material condition that does not have a symbol is the regardless of feature size, that is RFS. So RFS required that the condition of the material not be considered. So this is used where a tolerance is specified and the actual size of control feature is not considered when applying the tolerance. So now let's do an exercise. यहाँ पे मेरे पास होल एंड शाफ्ट की dimensions given है, मुझे MMC और LMC फाइंड करनी है. For shaft MMC value is 0.51 and hole value is 0.49, and for LMC shaft value is 0.47 and for hole it would be 0.50. Maximum clearance. The maximum amount of space that can exist between the hole and the shaft is known as the maximum clearance, and the formula of maximum clearance is equal to LMC hole minus LMC of shaft. And minimum clearance, or also known as the allowance, the minimum amount of space that can exist between the hole and the shaft, and the formula of minimum clearance is equal to MMC of hole minus MMC of shaft. Let's do the second exercise. So maximum clearance is
0.50 minus 0.47, that equal to 0.03. And for minimum clearance, answer would be minus 0.02. So what does a narrative clearance mean? नेगेटिव क्लियरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका फिट है वो टाइटेस्ट फिट है, मतलब कि आपकी जो शाफ्ट है वो ज़्यादा बड़ी बन रही है एज कम्पेयर टू होल। तो यहाँ पे ट्रांजिशन फिट जो है वो अकर हो रहा। ट्रांजिशन फिट क्या होता है, इन अ मिनट में आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज। यहाँ पे मेरे पास लिमिट्स गिवन है शाफ्ट की एंड होल्स की, और इसके मुताबिक हमने इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो होल जो है, हम होल की बेसिस के ऊपर अपनी शाफ्ट को डिजाइन करेंगे। इसका क्या मतलब है, ये मैं अभी कपल ऑफ मिनट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लिमिट यहाँ पे मेरा जो बेसिक साइज है वो 1 हो जाएगा। टॉलरेंस निकाल लेंगे आप यहाँ पे फॉर शाफ्ट एंड होल बाय अप्लाइंग द फार्मूला जो मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया। सिमिलरली आप एमएमसी एंड एलएमसी कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द सेम फार्मूला एज डिस्कस बिफोर, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम क्लियरेंस एंड द मिनिमम क्लियरेंस। तो ये 0.0012 कैसे आएगा, आप सिंपली इस लार्जेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे इस वैल्यू से, तो आपके पास टॉलरेंस आ जाएगी फॉर शाफ्ट। होल के लिए आप इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास टॉलरेंस आ जाएगी। एमएमसी शाफ्ट के लिए हमारे पास ये है 0.9975, और एमएमसी फॉर द केस ऑफ होल इज इक्वल टू 1। होल की सूरत में आपके पास क्योंकि इनर है तो आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेंगे। सिमिलरली LMC फॉर शाफ्ट इज 0.9963 एंड फॉर होल इज 1.002। सिमिलरली जो मैक्सिमम क्लियरेंस है वो आप LMC ऑफ होल माइनस शाफ्ट करके कैलकुलेट कर लेंगे, और मिनिमम क्लियरेंस के लिए आप MMC ऑफ होल माइनस MMC ऑफ शाफ्ट करके इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे।